Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear educarians. Hope you all are fine and well and taking good care of yourself. I am your maths teacher and this is our 9th lesson of mathematics. Okay dear students, as you know we are doing unit number 4 decimals and fractions. These are the content of today's lesson. So dear students, today we will discuss our last topic of unit number 4, that is division of decimal numbers. And we will solve the sums of exercise number 11 and exercise number 13. Let's have a recap of last lesson. In last lesson, we have learned about how to multiply the decimal numbers and we have solved the sums of exercise number 10. These are the learning outcomes of today's lesson. By the end of this lesson, students will be able to divide the decimal numbers and students will be able to solve the sums of exercise number 11 and exercise number 13. Dear students, here is a list of material that you will need to attempt the lesson: lead pencil, eraser, highlighter, mathematics book, notebook and ruler. I hope you have all these things and you are ready for this lesson. Now open the page number 63 from your maths book. It's about division of decimal numbers. So when dividing a decimal number by a whole number, ensure that the decimal point in the quotient is directly above the decimal point in the original number. The division process remains the same as for whole numbers. जब हम डेसिमल नंबर और होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें ये देखना है कि ओरिजिनल नंबर में जहाँ पर डेसिमल पॉइंट है क्वोशंट में भी वहीं पर डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे. द डिवीजन प्रोसेस और रिमेन्स द सेम एज फॉर होल नंबर्स. जब हम होल नंबर को होल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, हाईलाइट दीज पॉइंट्स ऑन योर बुक. हियर इज योर इंडेक्स पेज. Firstly, you will write the serial number, that is 9. Then write today's date here and then topic unit number 4 decimals and fractions, exercise number 11 and 13. Let's move to exercise number 11. It's about dividing the decimal numbers by a whole number. Let me solve the first question of this exercise, that is 60.89 divided by 5. Let's start solution. 60.89 को 5 पे डिवाइड करना है. इसके लिए सबसे पहला डिजिट देखें, ये 5 से लेस है या ग्रेटर है. सो 6 इज ग्रेटर देन 5, सो इट इज डिविजिबल बाय 5. 5 1s आर 5. अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1. अब 1 देखें, 5 से लेस वैल्यू है तो ये इस पर डिवाइड नहीं हो सकती. सो वी विल ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 0. इट बिकम्स 10. अब 10 को हमने 5 से डिवाइड करना है. 5 का टेबल में देखें 10 आएगा. अगर तो पूरी वैल्यू आ रही है तो हम वो उस पर डिवाइड कर देंगे. अगर पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही तो हम उससे लेस वैल्यू लेते हैं. बट 5 2s आर 10. It's completely divisible by 5. So 10 minus 10 is equal to 0. Now we will bring next digit, that is 8. 8 is greater than 5. So 5 1s are 5. 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3. अब आप यहाँ पर देखें, 3 is less than 5. It's not divisible by 5. सो हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आएंगे, डेट इज 9. इट बिकम्स 39. 39 इज अ ग्रेटर वैल्यू. सो 5 7s आर 35. अब आप देखिए 35 39 से लेस वैल्यू है. अगर हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8s आर 40, तो ये 39 से ग्रेटर वैल्यू आनी थी. और अब हम 40 यहाँ पर राइट नहीं कर सकते बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 39. सो 5 7s आर 35. 39 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4. 4 इज लेस देन 5, सो इट्स नॉट डिविजिबल बाय 5. सो
वी विल राइट हेयर 0। अब यहाँ पर हमने 0 लगाया क्योंकि हमने एक दफ़ा डेसिमल पॉइंट लगा दिया, उसके बाद जहाँ पर हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें 0 राइट कर सकते हैं। नाउ 5 8s आर 40। अब ये पूरा डिवाइड हो गया है, 5 8s आर 40, सो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। After dividing these numbers, we will get 12.178. Let's move to part B, that is 45.8 divided by 8. 45.8 को 8 पे डिवाइड करना है। सेम जैसे हमने पार्ट ए सॉल्व किया था वैसे ही पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 इज़ लेस देन 8, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इसके साथ हम नेक्स्ट डिजिट मिलाएंगे, डेट इज़ 5, इट बिकम्स 45। अब 8 के टेबल में आप ये देखेंगे कि 45 या 45 से लेस वैल्यू आए। सो 8 5s आर 40, 40 इज़ लेस दैन 45। अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो 45 से ग्रेटर वैल्यू आनी थी। सो हमें ग्रेटर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 45 यानी इक्वल या लेस वैल्यू चाहिए होती है। सो नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट, 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। 5 is less than 8, so we will bring down next digit, that is 8. It becomes 58. अब 58 को हमने 8 पे डिवाइड करना है। 8 के टेबल में हमने देखना है कि 58 या 58 से लेस वैल्यू आ जाए। सो 8 7s आर 56। 58 में से 56 माइनस किए तो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें हमारे क्वेश्चन में कोई नेक्स्ट डिजिट नहीं है जिसको हम इसके साथ मिलाएंगे। सो यहाँ पर हमें 0 पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वी विल पुट हेयर 0, इट बिकम्स 20। अब 8 के टेबल में हमने देखना है 20 या 20 से लेस वैल्यू आ जाए। सो 8 2s आर 16, 16 इज़ लेस दैन 20। सो 20 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 4। अब 4 देखें 8 से लेस है तो यहाँ पर हमें 0 लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट बिकम्स 40। 8 5s आर 40, 40 minus 40 is equal to 0. So after division we will get 5.725. Let's move to part C, that is 50.48 divided by 4. So dear students, अभी जैसे हमने पार्ट ए और बी सॉल्व किए हैं सेम एज इट इज़ हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि फर्स्ट डिजिट जो कि 5 है क्या वो 4 से ग्रेटर है या लेस है। सो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सो 4 1s आर 4। 5 में से 4 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 1। अब 1 जो है वो 4 से लेस वैल्यू है, इसके लिए हमें नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाना पड़ेगा, डेट इज 0, इट बिकम्स 10। 4 2s आर 8, 8 इज लेस देन 10, सो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 2 इज लेस देन 4, देन द डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे ऊपर। अब नेक्स्ट डिजिट जो कि 4 है उसको हम इसके साथ प्लेस कर देंगे। सो 4 6 आर 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट डिजिट जो कि 8 है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे। 4 2s आर 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो आफ्टर डिवीजन वी विल गेट 12.62. Okay dear students, now move to the page number 64. It's about division of a decimal numbers by 10, 100 and 1000. When decimal numbers are divided by 10, 100 or thousands, they follow the following rules. आपको याद होगा लास्ट लेसन में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे कि जब हम डेसिमल नंबर्स को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करता था। बट यहाँ पर हम डिवीजन के कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। 13.45 फर्स्ट पे डिवाइड हो रहा है 10 पर, सो डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 प्लेस टू द लेफ्ट, सो द राइट आंसर इज 1.345। 13.45 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर 13.45 100 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर 2 प्लेसेस तक मूव करेगा। सो 0.1345 राइट आंसर होगा। 13.45 divided by 1000, so the decimal point moves 3 places to the left, so the right answer is 0.01345. Okay dear students, here are some examples. Let me solve the first example, 13.45 divided by 10.
अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं, उनमें से फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। 13.45 10 से डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल पॉइंट्स लेफ्ट साइड की तरफ 1 प्लेस मूव कर जाएगा। सो राइट आंसर इज 1.345। लेट मी मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। 125.7 डिवाइडेड बाय 100। 125.7 100 से डिवाइड हो रहा है, so the decimal point moves 2 places to the left, so right answer is 1.257. Let me solve third example, that is 490.00 divided by 1000. Decimal point moves 3 places to the left, so the right answer is 0.49. अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करेगा लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स यानी 0.49 आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 13। लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज अ बॉटल ऑफ वाटर कंटेन 65.71 लीटर्स ऑफ वाटर। इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स 10 पीपल, हाउ मच विल ईच पर्सन गेट। एक वाटर बॉटल जिसमें 65.71 लीटर्स वाटर है, वो अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 10 पीपल में, तो हमने ईच पर्सन यानी हर पर्सन के पास कितना वाटर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। वाटर बॉटल कंटेन्स वाटर 65.71 लीटर्स। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 10 पीपल। हाउ मच ईच पर्सन गेट। अब हर पर्सन के पास कितना आएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए 65.71 लीटर्स को 10 पे डिवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे कि अगर हम डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 प्लेस टू द लेफ्ट। सो द राइट आंसर इज 6.571। सो 6.571 लीटर्स वाटर हर पर्सन के पास आएगा। Let's move to part B, that is a truck with bricks has brought in 1000 bricks to the construction site. The total weight of bricks is 1450.78 kg. What is the weight of each brick? एक ट्रक जिसमें 1000 ब्रिक्स हैं, अब टोटल वेट उन ब्रिक्स का 1450.78 kg है। अब उसमें जितने ब्रिक्स हैं हर ब्रिक का हमने वेट फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। A truck has bricks 1000. Total weight of bricks 1450.78 kg. Weight of each brick. हर ब्रिक का वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 1450.78 डिवाइडेड बाय 1000। अभी हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, उनमें से थर्ड रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1450.78 1000 से डिवाइड हो रहा है, सो डेसिमल पॉइंट्स मूव 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, सो द राइट आंसर इज 1.45078। हर ब्रिक का वेट 1.45078 होगा। लेट्स मूव टू पार्ट सी, दैट इज सायरा हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रिंग measuring 45.62 मीटर. She cuts it up into 6 equal parts. How long is each part of the string? सायरा के पास एक लंबी रस्सी है जिसकी लेंथ 45.62 मीटर है। अब उसने इस रस्सी को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट की लेंथ हमने फाइंड करनी है कि वो हर पार्ट कितना लंबा है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सायरा हैज स्ट्रिंग 45.62 मीटर. शी कट्स इट अप इनटू पार्ट्स 6. हाउ लॉन्ग ईच पार्ट? इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 45.62 को 6 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा 7.6033 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो हमारे पास 7.603 आया है, हर पार्ट की लेंथ 7.603 होगी। Let's have a quick review of today's lesson. Today we have learned about division of the decimal numbers, and we have solved the sums of exercise number 11 and exercise number 13. Okay dear students, in next lesson we will start unit number 5, that is measurement. We will discuss first topic of unit number 5, that is conversion between centimeter and millimeter.
and we will solve the sums of exercise number 1. So dear students, read this topic from your maths book. In next lesson when I will teach this topic, you have clear vision about this. Now it's time for task to do. You have to learn the highlighted points of chapter number 4 and solve the exercise number 11 and exercise number 13 on your notebooks and practice these exercises on register again and again. Now it's time to assess yourself. I hope you have understood each and every point of this lesson. Here is a short assessment for you. Assessment is a key component of learning. Assessment plays major role in how students learn. So, by keeping today's lesson in your mind, you can solve these blanks easily. Okay, dear students, as you know, after every lesson, we have some fun fact for you. So, today's fun fact is, among all shapes with the same perimeter, a circle has the largest area. I hope you people have learned a lot from today's lesson. So take care of yourself and thanks for watching video. Allah Hafiz.